So, dear students, today we are going to discuss about our new chapter, nutrition in animals. Okay, as we read nutrition in plants, same as we are going to discuss about nutrition in animals now. So, what you have to see, as you learned in chapter first, okay, plants prepare their food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants, okay, either directly or by eating plants, or indirectly by eating animals that eat plants, okay. Some animals eat both plant and animals. Recall the organism, including human, require, okay, food for growth, repair, and functioning of the body. So, animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Okay, as in first chapter also we discussed that what is nutrition. Okay, it includes the intake of food and its utilization by the body. So simple thing is same for animals also. So you have studied in class 6 that food consists of many components. Okay, try to recall them and list it. So you have to list them. So if you write them, first is carbohydrate. I am writing only first letter carbohydrate. Second, protein. Okay, then fats, vitamins, minerals, and water. Okay, so these things you have to written on your book. You can fill it. So the component of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. So they are broken down into simpler substances. Okay. So you can see that suppose this is a carbohydrate, okay, which we eat. It is a complex substance, means it is made up of a chain of monomers. Okay, many carbohydrates are joined them there. So this type of molecule is become. So after digestion, it converted into simpler substances in our body. So the breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. Okay, so the process in which the complex substances break down into simpler one, okay, is called as digestion. So now we will understand that what are the different ways of taking food. So the mode of taking food into the body varies in different organisms. Okay, it depends on different type of organisms. As you can see, bees, okay, and hummingbirds, they suck the nectar of plants. Okay, जैसे मधुमक्खी को देखा होगा आपने, बर्ड्स को देखा होगा, तो वो प्लांट्स में देखा होगा उनके फ्लावर में जो है मेनली नेक्टर को कलेक्ट करते हैं बाय सकिंग. ठीक है. So infants of human and many other animal feed on mother's milk. Okay, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर मिल्क पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, किसी भी एनिमल्स के. ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स. अब स्नेक्स की बात करें. ठीक है, सो लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. They swallow, directly swallow. ठीक है, ये क्या करते हैं, देखा होगा पाइथन मीन्स हो गया अजगर. ठीक है, तो अपने देखो पता होगा आप लोगों को कि ये क्या करते हैं, अपने प्रे को या जिसको खाते हैं उसको पूरा ही स्वालो कर लेते हैं, कोई भी एनिमल हो. ठीक है. So some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby the feed upon them. ठीक है, फ्लोटिंग फूड पार्टिकल अगर उनके आसपास है, बहुत से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसको खाते हैं. जैसे आपने मछलियाँ वगैरह पाली होंगी या कहीं आप पिकनिक वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप जब उन्हें देते हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह ऊपर जैसे पानी में डालते हैं तो उसको फ्लोटिंग जो कर रहा होता है उसको खा लेते हैं. तो देख रहे होगा कि इतनी सारी डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिखा रहे हैं. ठीक है, कैसे डिफरेंट वेज दिखा रहे हैं टेकिंग ऑफ फूड के. ठीक है, खाना खाने के या खाना लेने के. सो इन एक्टिविटी 2.1, okay, in this activity what we have to do, what is the type of food and mode of feeding of the following animals. Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. Okay,
So these are the various mode of nutrition. Okay, you can see here the list is given. Okay, snail kind of food, mode of feeding. So there is for your help. Okay, scraping, chewing. Okay, so siphoning, capturing and swallowing, sponging, sucking, etc. So these the things are for your help. ओके, मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। वेरियस मोड ऑफ फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है, जैसे स्नेल है, स्नेल का जो काइंड ऑफ फूड है, ओके, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पे आप लिख लेंगे लीव्स एंड इंसेक्ट्स। मोड ऑफ फीडिंग इसका होता है, ठीक है, लीव्स एंड इंसेक्ट्स में जो मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा स्क्रैपिंग। ठीक है, स्क्रैपिंग यहाँ पे लिखना होगा, स्क्रैपिंग। आंट, आंट का आपको पता है फूड पार्टिकल्स। ओके, मोड ऑफ फीडिंग होता है इसका च्यूइंग। ठीक है, चबाते हुए। ईगल, ईगल देखा होगा आपने, स्मॉल एनिमल्स लिख सकते हैं या फ्लैश लिख सकते हैं, मेनली स्मॉल एनिमल्स लिख लेना है यहाँ पे, स्मॉल एनिमल्स। ओके, मोड ऑफ फीडिंग का होता है कैप्चरिंग एंड स्वालिंग, जो यहाँ पे दिया गया आपके कैप्चरिंग एंड स्वालिंग, ये हेल्प के लिए आपके। ठीक है, मोड ऑफ इसमें फूड फीडिंग के। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड हमने अभी पढ़ा था, ये नेक्टर ऑफ फ्लावर हो जाएगा बाय सकिंग। लाइस, ब्लड। ठीक है, लाइस में क्या लिख लोगे, ब्लड। सकिंग इसका भी हो जाएगा। ठीक है, मॉस्किटो भी ब्लड है। ठीक है, और ये भी सकिंग के द्वारा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्टर ऑफ फ्लावर ये साइफोनिंग के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है साइफोनिंग लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, साइफोनिंग मीन्स मतलब जैसे पंप से निकालते हैं ना पानी, उसी तरीके से। हाउस फ्लाई, मोस्ट एवरीथिंग, इसमें लिख लोगे एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वैसे जगह हो तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी कुछ खाते हैं हाउस फ्लाई। ठीक है, ये भी जो है साइफोनिंग के द्वारा या सिफोनिंग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। So like this you can make this table. Okay, table 2.1 you have to fill. Okay, now move to the we will move to an amazing fact that starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digest. ठीक है, मतलब कितनी अमेजिंग प्रोसेस है ये स्टारफिश में। ठीक है, ये एक ये मेनली सी एनिमल है। ठीक है, तो इसमें देखो कि किस तरह से ये अपना खाना खाता है। ठीक है, मेनली आपको पता है कि जो सी वाटर है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, सी वाटर एनिमल में एक आपको कोटिंग मिलेगी कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो उनकी जो हार्ड कवरिंग है उसको ये ओपन करता है पहले। ठीक है, फिर अपना जो स्टमक है वो अपने मुंह से निकालता है बाहर को। ठीक है, इसका स्टमक है वो बैक साइड होता है। ठीक है, वो अपने मुंह से निकालेगा उस स्टमक को। फिर जो सॉफ्टर एनिमल जो है मेनली, ठीक है, जो सेल से घिरा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की पहले सेल निकाल लेगा उसकी। ठीक है, फिर जो है उसकी कवरिंग को निकाल के उस एनिमल को खाता है और उसको पेट में ले लेता है, फिर से अंदर को ले लेता है अपना पेट। ठीक है, फिर जहाँ पे वो धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह की इसमें प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, इसमें हमने न्यूट्रिशन क्या होता है ये डिस्कस कर लिया है अभी तक। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ओके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड हमने इसमें जो कुछ एनिमल्स दिए थे टेबल 2.1 में ये कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद एक अमेजिंग फैक्ट भी हमने पढ़ लिया है स्टारफिश के बारे में। ठीक है, स्टारफिश को देख रहे हो ना, स्टार जैसे शेप है स्टारफिश, इस तरह से, तब इसको हम स्टारफिश कहते हैं। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस बिकॉज इट इज अ फुल लेंथी वन, so we have to start it with a different day with a different class. Okay, in a different class. So till here if you find any confusion, okay, so you can ask. If you